بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے کے ساتھ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ میں ہوں صدف علی خان اور کھیلوں خبروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم۔ حکومت کی مالیاتی خدمات تک رسائی میں بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ مائیکرو فائنانس کے شعبے میں اسلامی بینکاری کو بڑھانا ہوگا۔ کرونا وائرس سے پوری دنیا کی طرح پاکستانی معیشت بھی متاثر ہوئی۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا اسلامی معاشیات کے مستقبل سے متعلق استنبول میں بین الاقوامی کانفرنس سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب۔ مشکل وقت میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا۔ سی پیک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ این ایچ اے نے کفایت شاری مہم کے تحت 1 ارب 68 لاکھ روپے کی بچت کی۔ وزیر مواصلات مراد سعید۔ وزیر اعظم عمران خان کی لاہور میں مرحوم ڈاکٹر اعجاز احسن کے گھر آمد۔ اہل خانہ اور بھائی بیرسٹر اعتزاز احسن سے تعزیت۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا۔ ڈاکٹر اعجاز احسن کی پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن کی حیثیت سے پارٹی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان میں کرونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی، ایک دن میں ریکارڈ 6,825 نئے کیسز کی تصدیق۔ متاثرہ افراد کی تعداد 1,39,230 تک جا پہنچی۔ مزید 81 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,632 ہو گئی۔ 51,735 صحت یاب۔ اس وقت ملک میں تقریباً 1.5 لاکھ کرونا کے مریض ہیں۔ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو جولائی کے آخر تک تعداد 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق فیس ماسک کا استعمال کرونا پھیلاؤ روکنے میں معاون ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی NCOC میں میڈیا بریفنگ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا وزارت خارجہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے سے متعلق مشاورتی اجلاس۔ کرونا نے دنیا کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کووڈ-19 کا علاج جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے شیخ رشید احمد کو ٹیلی فون کر کے خیریت دریافت کی۔ ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف بہترین صلاحیتوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں رہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا ملٹری ہسپتال راولپنڈی سے پیغام۔ سندھ حکومت منافرت کی سیاست کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کھیل کر سیاست چمکا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ کراچی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ ٹڈی دل سے متاثرہ 44 اضلاع میں سروے اور کنٹرول آپریشن جاری۔ محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور فوج کی 1,281 ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں انسداد ٹڈی دل مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 79,41,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,34,000 ہلاک، 40,86,000 افراد صحت یاب۔ امریکہ میں 21,52,000 افراد متاثر، 1,17,600 سے زیادہ ہلاک۔
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا تاریخی اقدام، یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے اقدامات۔ قومی احتساب بیورو کا انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ، برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے سلمان شہباز کی واپسی کے لیے مدد دی جائے گی۔ ماضی کی مقبول اداکارہ سبیحہ خانم امریکہ میں انتقال کر گئیں۔ سبیحہ خانم نے 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستانی سینما پر راج کیا۔ حکومت پاکستان نے سینئر اداکارہ کو بہترین فنی خدمات پر تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا سبیحہ خانم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا پہلا آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ آج شروع ہو رہا ہے۔ ایونٹ میں ملک بھر سے باکسرز ایکشن میں ہوں گے۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ 7 روز جاری رہے گا۔ تماشائیوں کے بغیر یورپین فٹ بال لیگ کے مقابلے جاری۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں بارسلونا کی ریال مالورکا کو 4 گول سے شکست۔ جرمن فٹ بال لیگ میں ورڈر بریمن کی ٹیم پیڈربان کو 5-1 سے شکست دینے کے باوجود بھی ریلیگیشن کے خطرے سے دوچار۔ بائرن میونخ نے بوروسیا میونچن گلاڈباخ اور بوروسیا ڈورٹمنڈ نے فورتونا ڈسلڈورف کو ہرا دیا۔ ناظرین، رخ کریں گے تفصیلات کا۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم ہے۔ حکومت مالیاتی خدمات تک رسائی میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلامی معاشیات سے متعلق استنبول میں 12ویں بین الاقوامی کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب میں انہوں نے کہا کہ مائکرو فائنانس کے شعبے میں اسلامی بینکاری کے حصے کو بڑھانا ہوگا۔ The development of Islamic finance in its present form can be traced back to the decade of the 60s. It is still relatively new as compared to conventional financial markets. However, it is growing rapidly, and the extension beyond Muslim majority jurisdictions reflects its much wider acceptability as a viable alternate and complement to conventional finance. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ مشیر خزانہ نے کہا کہ کرونا وائرس سے دنیا کی طرح پاکستانی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ محدود وسائل کے باوجود حکومت نے کرونا ریلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ The whole world has been affected, and according to the IMF, the global GDP is going to contract by 3 to 4%. We in Pakistan have also been affected, and our GDP has taken a hit. Also, our exports and remittances have been adversely affected, and industry and retail trade and manufacturing sectors have also suffered. We have tried to respond by offering an economic stimulus in which we have transferred cash into the hands of about 16 million families. مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ رواں سال کے TSDP میں 57 منصوبے رکھے گئے ہیں۔ سی پیک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ قومی خزانے پر بوجھ بنے بغیر 1318 کلومیٹر سڑکیں بنائیں گے۔ مودھا نے مزید یہ کہا کہ مشکل وقت میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا۔ 11 ارب 90 کروڑ روپے احتساب کی مد میں ریکور کیے گئے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں صدف افضل۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ کورونا کے باعث حکومت نے مستحق خاندانوں کے لیے 12,000 روپے فی خاندان امداد رکھی ہے۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم کے تحت وزیر اعظم آفس کے اخراجات میں بچت کی گئی۔ 30 کروڑ 5 لاکھ کی کمی کی وزیر اعظم آفس کے اخراجات میں، اور 18 کروڑ سے زائد دوسرے فائنینشیل ایئر میں جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا
उससे भी कम उन्होंने सर्व किया और उसमें बचत की। 1,61,00,000 NHNEB 20.5 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऑस्टेरिटी विजन के मुताबिक कंट्रीब्यूट किया, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अकाउंटेबिलिटी के अंदर हमने पिछले 20 महीने के अंदर 11,90,00,000 रुपए जो है वो हमने रिकवर किए हैं। 35 अरब से हमने ज्यादा का 20.5 महीने में रेवेन्यू जो है उसमें इजाफा किया। मुराद सईद ने कहा कि हम आवाम के लिए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे लेकर आए हैं। सबसे ज्यादा जहां पे आबादी है उन इलाकों को अगर मोटरवे नहीं मिला तो अब मिलने जा रहा है। सियालकोट से कारिया और कारिया से रावलपिंडी, ये पूरा आपका पंजाब जो है वो मोटरवेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कराची, क्वेटा, चमन ये अहम तरीन है, इसकी डुअलाइजेशन या एक्सप्रेसवे यहाँ पे होना चाहिए, लिहाजा हमने इसको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। शादरा फ्लाईओवर के ऊपर भी हम इसको भी बनाने जा रहे हैं। बलकसर मियावाली जो रोड है डुअलाइजेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो मुजफ्फरगढ़ रोड ये भी आपको पता है साउथ पंजाब के अंदर आता है और अब हम इंशाअल्लाह इसको करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि छोटे और पसमानदा इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में मरहूम डॉक्टर एजाज एहसन के घर गए। उन्होंने मरहूम के अहले खाना और भाई बैरिस्टर एतजाज एहसन से ताज़ियत की और मरहूम की रूह को ईसाल सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरहूम डॉक्टर एजाज एहसन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन की हैसियत से पार्टी के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस सामने आए और मजीद 81 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,39,230 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 2,632 है। 51,735 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। नाज़रीन, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के तकरीबन 1.5 लाख मरीज हैं। वबा का फैलाव रोकने के लिए मास्क और समाजी फासले की तदाबीर पर अमल करना होगा। तफसीलात जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल के लिए अवाम से बार बार अपील की गई है। 26 फरवरी को पहला केस आया था और आज जून के वक्त में तकरीबन हम 1.5 लाख केसेस के ऊपर खड़े हुए हैं। जून के आखिर तक ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है। जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। बुनियादी तौर पे 2 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है। पहली चीज ये मास्क पहनना, दूसरी चीज समाजी फासला रखना। ये इसलिए नहीं हुकूमत कर रही कि वो आपको तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कर रही है क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की जिंदगी की, उनके सेहत की हिफाजत की जाए। असद उमर ने कहा कि जिन इलाकों में वबा का फैलाव ज्यादा है वहाँ इंतजामी कार्रवाई होगी, जिसका आगाज लाहौर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बेड में इजाफे के लिए सूबों की मुआवनत और टेस्ट करने की सलाहियत में इजाफा किया गया है। हम वफाकी हुकूमत सूबों की मदद करेंगे। इन 2,150 ऑक्सीजन के बेड्स जो हैं उनके अंदर इजाफा किया जाए। सिंध के अंदर 500 बेड्स का इजाफा होगा जी, खैबर पख्तूनख्वा 400, पंजाब 500, बलोचिस्तान 200, गिलगित बल्तिस्तान 40, आजाद जम्मू एंड कश्मीर 60 और इस्लामाबाद के अंदर 450 बेड्स का इजाफा किया जा रहा है। तकरीबन पिछले 2 दिन से 30,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, यानी 60 गुना से ज्यादा इजाफा किया जा सकता है, किया जा चुका है। कैपेसिटी इससे भी ज्यादा इस वक्त मौजूद है, तकरीबन 45 से 50,000 टेस्ट की कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है। इसको अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम 3 गुना से ज्यादा कैपेसिटी के अंदर इजाफा करेंगे, यानी इसको 1.5 लाख टेस्ट रोजाना करने की कैपेसिटी तक ले जाएंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि वबा के फैलाव की रफ्तार को कम करके सेहत के निजाम को मफलूज होने से बचाया जा सकता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت خارجہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں خصوصی مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا اور اس اجلاس میں ٹیلی کام کمپنیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا کی عالمی وبا نے دنیا کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ آج دنیا بھر میں تمام اہم اجلاس ویڈیو لنک اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے امور کی انجام دہی میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ٹیلی کام کمپنیوں کے نمائندگان کی گراں قدر آراء کو سراہا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ان کا کووڈ-19 کا علاج جاری ہے، اب وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ ملٹری ہسپتال راولپنڈی سے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ کورونا بیماری کو سنجیدہ لیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں رہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو ٹیلی فون کر کے ان کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ اسد قیصر نے وزیر ریلوے کی جلد صحتیابی کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شیخ رشید احمد نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد بے حد ضروری ہے۔ سماجی فاصلے قائم رکھنے میں ہی تحفظ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں صوبائی وزیر یاسر ہمایوں سے ملاقات میں کہا کہ کورونا وبا کے باعث معاشی اور سماجی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہم سب کو بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق طرز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ صوبائی وزیر یاسر ہمایوں نے کوئین میری کالج لاہور کی جانب سے چیف منسٹر فنڈ کورونا کنٹرول کے لیے 7,89,000 روپے کا چیک دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے چیف منسٹر فنڈ میں رقم عطیہ کرنے پر کوئین میری کالج کے اساتذہ اور عملے کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ بات کریں سندھ کی، جہاں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ماسک، گلوز اور ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ PTI لیڈر رہنما فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن بھی کورونا وائرس کی روک تھام چاہتی ہے۔ صوبائی حکومت کو صحت کی سہولتیں بہتر بنانا ہوں گی۔ تفصیل جانتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صوبے میں اب تک 2,98,332 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 53,805 کیسز سامنے آئے ہیں۔ آج 1,119 مریض صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ اب صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 52,606 ہو گئی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ SOPs پر سختی سے عمل کریں اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تعاون کریں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی نے کہا ہے کہ اجتماعی سطح پر مل کر ہی کورونا وائرس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ وفاق کی کارکردگی اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے سندھ کو اس کا حصہ نہیں ملا، یہ کہتے ہیں سندھ کو اس کا حصہ نہیں ملا، یعنی ایسا تاثر دیتے ہیں کہ باقی صوبوں کو اتنا ملا جتنا ان سے وعدہ کیا تھا، سندھ کو نہیں دیا، اسے کہ سندھ میں PPP کی حکومت ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ حکومت نے بدعنوان عناصر کی پشت پناہی کی ہے، جبکہ سندھ کے عوام بنیادی سہولتوں کو ترس رہے ہیں۔ جو حکومت تھر کے عوام کو پانی تک نہ دے سکے اس سے کیا توقع رکھی جائے۔ اس موقع پر PTI کے ارکان اسمبلی اور دوسرے رہنما بھی موجود تھے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کورونا سے متاثر اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی اور ارکان صوبائی اسمبلی سمیرہ شمس اور عائشہ بانو کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ صوبے میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں انتظامیہ سختی کرنے پر مجبور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جن عوامی مقامات پر SOPs کی خلاف ورزی ہوگی ان کو بند کر دیا جائے گا۔ محمود خان نے کہا کہ تاجر اور ٹرانسپورٹر SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ صوبے کے ہسپتالوں کی استعداد کار میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہسپتالوں اور طبی عملے کے لیے درکار سہولتیں مہیا کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات جاری ہیں۔ پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران اجمل وزیر نے کہا کہ فاٹا اصلاحات کمیٹی نے قبائلی اضلاع کے لیے NFC سے 3% حصے کی سفارش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے یہ معاملہ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں اٹھایا۔
सिंध हुकूमत NFC से कबायली अजला को हिस्सा देने की मुखालिफत कर रही है। बलोचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल खान की खुसूसी हिदायत पर खुलदार टीचिंग अस्पताल में कोरोना वायरस PCR टेस्ट का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला की हिदायत पर सूबे में कोरोना वायरस की टेस्टिंग में इजाफा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर खुसदार ने कहा कि खुसदार लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस के टेस्ट शुरू होने से सूबे में कोरोना टेस्ट की सलाहियत में खासा इजाफा हुआ है। वजीर आला जाम कमाल खान ने टीचिंग अस्पताल खुसदार में कोरोना वायरस PCR टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के क़याम पर इत्मीनान का इज़हार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये एक अहम पेशरफ्त है जिससे आवाम को कोरोना वायरस टेस्ट कराने की सहूलत मयस्सर होगी। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने PTM रहनुमाओं को दावत दी है कि वो आएं और तमाम मुतनाज़ मसाइल पर तबादला ख्याल करें। उन्होंने कहा कि वो और PTM रहनुमा सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें इज्तमाई तौर पर सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। पख्तून एक मुहिब्बे वतन कौम है और वो मुल्क के दिफा में जानों का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि साबिका फाटा के अवाम को कौमी धारे में लाने के लिए उन अजला को सूबे में जम कर दिया गया था। वक्त आ गया है कि उनकी तरक्की के लिए सियासी महाज आराई के बजाय इज्तमाई तौर पर काम करें। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली गिलानी से मंसूब जाली खत खुफिया भारतीय एजेंसियों की साजिश है जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के आज़ादी पसंद अवाम की मुकद्दस तहरीक को बदनाम करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला खत जाली है। उन्होंने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन गुज़िश्ता 10 बरस से ज्यादा अरसे से घर में कैद हैं और बाहर की दुनिया से उनके रवाबित मुनक़ता हैं। तर्जुमान ने कहा कि बाज़ मौका परस्त भारतीय खुफिया एजेंसियों की ईमा पर सूरत हाल को ज़ाती हकीकत मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने हुर्रियत रहनुमा की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि सैयद अली गिलानी की शख्सियत एहसास है और भारत की जानिब से उन्हें बदनाम करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पायदार हल की भरपूर वकालत करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर शाहिद सलीम और तहरीक वहदत इस्लामी ने अपने बयानात में कहा है कि भारतीय फौजी कश्मीरी अवाम को महज हक़ खुद इरादियत के मुतालबे पर नाकाबिल तसव्वुर मसालिम का निशाना बना रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद इंसानी हुकूक के कारकुन मोहम्मद एहसन ओंटो ने जेल से अपने पैगाम में कहा कि भारत और मखबूजा कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद हजारों बेगुनाह कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट का वफ़द हाल ही में भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले नौजवानों को खिरादे अकीदत पेश करने के लिए श्रीनगर में मज़ारे शुहदा पर गया। वफ़द की क़यादत मुज़फ़्फ़र जान कर रहे थे। पाकिस्तान ने मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने एक बयान में कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयान बीजेपी हुकूमत का आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ एक और झूठ है। बयान पाकिस्तान के खिलाफ लाइलाज जुनून का अक्कास है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करना, कश्मीरियों को कमज़ोर और हक़ से महरूम करना है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि बीजेपी हुकूमत बंदूक के जरिए अपने फैसलों पर अमल दरामद चाहती है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से ज्यादा फौज के जरिए लॉकडाउन को 10 माह से ज्यादा अरसा हो गया है। उन्होंने कहा कि बयान रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर BBC का मज़मून, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाली इंडियन फौज चीन के सामने खामोश क्यों रहती है? साबिक भारतीय फौजी सरबराह बिक्रम सिंह ने BBC को इंटरव्यू में भारत की असलियत बता दी। बिक्रम सिंह ने कहा कि चीन को जवाब देने के लिए कार्रवाई का फैसला फौज नहीं बल्कि सियासी क़यादत करती है। उन्होंने कहा कि हमें मोहतात रहना होता है कि हमारी सलाहियत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। कोई भी कदम उठाते हैं तो उसके देर पा असरात के बारे में भी सोचना चाहिए। जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि चीन के साथ मामले में तसादुम में इजाफे का भरपूर खदशा होता है। साबिक भारतीय चीफ ने कहा कि अगर जवाबी कार्रवाई करना चाहें तो हमें वसाइल की
जरूरत होगी। सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से चीन हमसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले चीन कम वक्त में फौज के 22 डिवीजन जमा कर सकता था, आज 32 कर सकता है। एक डिवीजन में 10,000 फौजी होते हैं जो फौरी पोजीशन संभाल सकते हैं। साबिक भारतीय खारजा सेक्रेटरी श्याम सरन ने कहा कि चीन की सरहद पर इंडियन फौज जवाबी कार्रवाई करना नहीं चाहती या इसके पास सलाहियत नहीं। BBC रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 जून को नेपाल के वानीसेरी के नए सियासी नक्शे को मंजूरी दी। नए नक्शे में काला पानी, लिपो लेक, लंपियाधोरा शामिल हैं जो इंडिया के नक्शे में भी हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि नेपाल किसी और के इशारों पर काम कर रहा है। और अब आपको बताएं टिड्डी दल की ताज़ा तरीन सूरत हाल। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की 1281 मुश्तरका टीमें मुल्क के 44 अजला के मुतासरा इलाकों में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 14 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 1,89,000 एकड़ पर सर्वे किया गया। जिला मियांवाली में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 50 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। NLCC के मुताबिक सिंध में पिछले 24 घंटे में 1,42,000 एकड़ अराजी पर सर्वे किया गया। 5 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 2,471 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,92,000 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया और 9 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 2,471 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। बलूचिस्तान में 3 लाख एकड़ पर सर्वे किया गया। 29 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 16,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया गया। नाजरीन, दुनिया भर में अब तक 79,41,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,34,000 तक पहुंच गई है। अब तक 40,86,000 कोरोना के मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 21,52,000 से ज्यादा है, जबकि 1,17,600 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील मुतासरीन और अमवात की तादाद के एतबार से दूसरे नंबर पर आ चुका है, जहां 8,52,000 से ज्यादा मुतासर, जबकि 43,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया शदीद माशी बहरान की जद में है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक बरतानवी मईशत 20.4% तक गिर चुकी है। माहिरीन का कहना है कि जब तक समाजी फासले को कम करते हुए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को नहीं खोला जाता, बरतानवी मईशत की बहाली बहुत मुश्किल है। वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो पाबंदियों को नर्म करते हुए समाजी फासले को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ही कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद कम होगी, हम समाजी फासले की पाबंदी खत्म कर देंगे। नाजरीन, मैक्सिको शहर के मेयर ने अगले हफ्ते से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पर आयद पाबंदियों को नर्म करने का ऐलान किया है। 3,40,000 के करीब फैक्ट्री मजदूरों को भी इजाजत दे दी गई है कि वो काम पर वापस जा सकते हैं। मुकामी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियां खोल दी जाएंगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जुमेरात से छोटी दुकानें भी खोलने की इजाजत होगी। अमरीकी रियासत अटलांटा में पुलिस ने एक और स्याफाम को गोली मारकर हलाक कर दिया। स्याफाम शहरी की हलाकत के कुछ घंटे बाद ही लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गए। जॉर्जिया में मुजाहिरों की शिद्दत आ गई है। दूसरी जानिब अटलांटा के मेयर के मुताबिक पुलिस के सरबराह ने शहरी की हलाकत के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसे कबूल कर लिया गया है। नाजरीन, चीन के शहर वेंगिंग में तेल से भरे टैंकर में धमाके से 18 अफराद हलाक और 167 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब माई गैस से भरा टैंकर एक्सप्रेस वे पर धमाके से फट गया। इसके बाद एक दूसरा धमाका हुआ और तबाहशुदा टैंकर एक्सप्रेस वे के करीब वाक़ वर्कशॉप पर जा गिरा। धमाके से करीबी रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचा।
कोरोना वायरस से बैनुल अक़वामी मईशतों को नुकसान पहुंचने का तबाह कुन सिलसिला जारी है। वबा की वजह से इक़्तिसादी सरगर्मियां सुस्त प्रगति का शिकार हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के साथ साथ मुस्तहकम मईशतों वाले मुल्क की GDP पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वबा की वजह से आलमी मईशत की मजमूई मुल्की पैदावार को 9,000 अरब डॉलर के नुकसान का सामना है। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक 2020 में बरतानिया की GDP में मनफी 11.5, फ्रांस मनफी 11.4, इटली मनफी 11.3, स्पेन मनफी 11.1, यूरो खित्ता मनफी 9.1, रूस मनफी 8, कनाडा मनफी 8, ब्राजील मनफी 7.4, अमरीका मनफी 7.3, जर्मनी मनफी 6.6, जापान मनफी 6, भारत मनफी 3.7 और चीन की मनफी 2.6% तक गिर सकती है। इन आदाद शुमार को सामने रखते हुए आइंदा साल पाकिस्तान की GDP में मनफी 0.4% तक कमी का अंदाजा है। कौमी इक़्तिसादी जायजा के मुताबिक इस वबा से पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार को 3,000 अरब रुपए के नुकसान का अंदाजा है। अप्रैल के महीने में अमरीका में पहली सहमाही के दौरान GDP में 48% और बरतानिया में 20.4% की नुमायां कमी देखने में आई है। यूरोपीय यूनियन में गुज़िश्ता 14 बरसों में पहली बार बड़े पैमाने पर कमी देखने में आई है। आलमी बैंक के ताज़ा तरीन जायजे में साल 2020 में आलमी GDP में 5.2% कमी की पेशनगोई की गई है। आलमगीर वबा की वजह से साल 2020 में कई मुल्क कसाद बाजारी का सामना करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत ने तेजी से फैलने वाली कसाद बाजारी पर काबू पाने के लिए सख्त और मुश्किल फैसले करते हुए मायारी हिफाजती तदाबीर के साथ तामीरात, सनत और ज़राअत समेत मईशत के कई अहम शोबों को खोल दिया है। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत मोदी हुकूमत की जानिब से दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन के बाद भी इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना कर रहा है। भारत के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात प्रणब प्रधान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की मईशत और बेहतर हालात में भी मुश्किल से रोटी कमाने वाले गरीब शहरियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। बाज़ अंदाजों के मुताबिक भारत में 24 मार्च के लॉकडाउन के बाद 1 करोड़ 20 लाख अफराद फौरी तौर पर बेरोजगार हो गए हैं, जबकि 1 अरब 38 करोड़ की आबादी में से निस्फ मुफलिसी का शिकार हो चुकी है, जिनमें से बाज़ फाका कशी की सतह पर पहुंच गए हैं। विफाकी बजट में तामीराती शोबे को टैक्स की मद में खातिर खा रिलीफ देने की तजावीज़ रखी गई हैं। हुकूमत के इस इक़दाम को शोबा तामीरात से वाबस्ता अफराद ने बेहद सराहा है। तफसीलात ज़शान अहमद से। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में तामीरात के शोबे को खुसूसी मराद देने की तजवीज़ रखी गई है। हुकूमत की जानिब से सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी में 25 रुपए की कमी की तजवीज़ है, जबकि तामीरात के शोबे में टैक्सेस को निफ्ट करने की तजवीज़ भी शामिल है। तामीराती शोबे से वाबस्ता कारोबारी हजरात और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया है। पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। इसके बहुत ज्यादा फवायद होंगे, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फवायद होंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन जो है उससे रिलेटेड 70-80 इंडस्ट्रीज हैं। 70 से जायद अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। 70 से जायद अलाइड इंडस्ट्रीज की जब मैं बात करता हूं तो ये 70 फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं। हर प्रोडक्ट की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, यानी अगर एक सीमेंट बनाने वाले की 10 फैक्ट्रियां, सरिये बनाने वाले की 50 फैक्ट्रियां, दरवाजे बनाने वाले की पाइप, तो ये सब अगर मिलाते हैं तो ये तादाद हजारों में पहुंच जाती है। तो इतनी सारी इंडस्ट्री आपके इस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। तो जब ये सेक्टर चलता है तो उन सब की इंडस्ट्रीज भी चलती हैं और आपको और हमको सबको पता है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट होती है। हुकूमत की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत गरीब और माशरे के पिछड़े हुए तबके के लिए 50 लाख घरों की तामीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, जिसके लिए हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की है। हुकूमत को दुआएं करेंगे गरीब लोग। भाई ये तो गरीब का चूल्हा यही तो है, सबसे बेहतरीन काम ये डस्ट है। अगर काम होगा तो घर का चूल्हा जलेगा, काम नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम खुलने से सबकी आसानी मुश्किल आसान हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोजगार इंशाल्लाह बढ़ेगा। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम करा है। तामीरात के शोबे से वाबस्ता स्टील पाइप, अंडरग्राउंड टैंक और बॉयलर्स को फरोग देने के लिए हार्ड रोल कॉइल्स पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी को 12.5% से कम करके 6% रखने की तजवीज़ की है। आइंदा माली साल के बजट में रिहायशी इमारतों की तरक्की के लिए गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त से हासिल होने वाले मुनाफे को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की भी तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे में रिलीफ देने से न सिर्फ लोगों को सस्ते घर मिलेंगे, बल्कि मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लोगों को भी रोजगार के वसी मौके मिलेंगे। ज़शान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
आगे बढ़े आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दुनिया के बेशतर मुल्कों में खून का अतिया देने वालों का दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद महफूज खून से मुतालिक आगाही देना और लोगों की मदद करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा करना है। दुनिया में बेशुमार अमराज में मरीजों को खून की जरूरत रहती है। खून का अतिया किसी की जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला कुन भी साबित हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि खून का अतिया देना न सिर्फ काबिल भरोसा अमल है बल्कि इससे अपनी सेहत पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और नाज़रीन, खून का अतिया करने वालों के आलमी दिन पर पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर ने ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप में इस्लामाबाद के रिहायशियों की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। तफसीलात बता रहे हैं हसन तारिक पर। इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे का मकसद खून का अतिया करने वालों को खराज तहसीन पेश करने के साथ ब्लड डोनेशन की अहमियत को उजागर करना है। खून का अतिया करना किसी को जिंदगी देने के मुताबिक है। हर हफ्ते एक दफा हर मरीज को खून लगाया जाता है और हमारे पास इस वक्त सिर्फ सुंदर्स फाउंडेशन में 6000 से ऊपर तादाद में मरीज हैं। तो आप आएं और आके अपने एहतियात दें। ये एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए गिफ्ट है और कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाई। खून आपके जिस्म में ऐसी चीज़ है जो कि मुस्तकिल बनती रहती है। अगर आप 3 महीने के अंदर किसी को खून देंगे तो वो दोबारा बन जाएगा। तो खून देने से आपकी जिस्म से क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी अच्छी हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में थैलेसीमिया के 1 लाख मरीज हैं, जबकि हर साल 5000 बच्चे इस मर्ज के साथ पैदा होते हैं। खून का अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर F9 पार्क में वाक़े पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप में आएं और खून का अतिया करके थैलेसीमिया और खून के दीगर अमराज में मुब्तला अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को बरतानिया से वापस लाने के लिए इंटरपोल से राबिता करने का फैसला किया है। तर्जुमान नैब के मुताबिक बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से सलमान शहबाज की वापसी के लिए मदद दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे रखा है। सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से बनाई गई कमेटी ने यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब के जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने अपने एक पैगाम में कहा कि कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि आइंदा माली साल के लिए सूबाई सिंध का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ हमारे लोगों को मुतासर किया बल्कि इससे आइंदा साल के बजट तखमीने भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में सेहत के शोबे को तरजीह दी जाएगी। जर्मनी में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी जर्मन जबान सीखकर मकामी सियासत में फाल किरदार अदा करें। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की सियासत में फाल किरदार अदा करने से पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि PIA की जर्मनी के लिए परवाजों की बहाली की कोशिशें जारी हैं। और नाजरीन, अब कुछ बात वाइट गोल्ड और सफेद इनकलाब की। रवा माली साल के दौरान लाइफ स्टॉक सेक्टर का मजमूई हजम 1466 अरब रुपए रहा, जबकि शरह नमूद 2.5% रही। माशी बेहतरी, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए मौजूदा हुकूमत लाइफ स्टॉक सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तफसीलात आसिम रिजवान की खुसूसी रिपोर्ट में। डेयरी की सनत को व्हाइट गोल्ड से मंसूब किया जाए तो गलत ना होगा। ज़राई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी और गुर्बत के खात्मे के लिए लाइफ स्टॉक सेक्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस सेक्टर का ज़राअत में हिस्सा 60.6% और GDP में हिस्सा 11.7% है, जबकि मजमूई बरामदात में लाइफ स्टॉक सेक्टर 3.1% हिस्से का हामिल है। मुल्क में 8 मिलियन दही खानदानों की आमदनी का 35 से 40% इस सेक्टर पर मुनहसर है। हमारे जानवरों में इंतहाई पोटेंशियल है, उनकी जिस्मानी जो प्रोडक्शन है, उनकी बढ़ोतरी है, उसके मुताबिक अगर उनको खुराक मिल जाए
तो ये बहुत ही ज्यादा तरक्की करता है। माली साल 2019-20 के दौरान मुल्क में दूध की मजमूई पैदावार 61,690 मिलियन टन रही, जिसमें गाय के दूध का हिस्सा 22,508 मिलियन टन और भैंस के दूध की पैदावार 37,256 मिलियन टन थी। रवा माली साल के दौरान गोश्त की मजमूई पैदावार 4,708 मिलियन टन में बीफ का हिस्सा 2,303 मिलियन टन था। 85% से ज्यादा लाइव स्टॉक के मालिकान छोटे फार्मर हैं, जो कि घरों में 1 से 6 भैंसें और 1 से 3 गाय पालते हैं। पाकिस्तान में जो फार्म की गेट प्राइसेस हैं मिल्क की, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में जो जानवर हैं उनकी जो मिल्किंग ईल्ड है या जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम है। एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स सालाना 170 लीटर से ज्यादा दूध इस्तेमाल करता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई मुल्क की मांग को पूरा करने के लिए लाइव स्टॉक की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान दूध पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है, जिसकी वजह पैदावार ज्यादा होने की बजाय जानवरों की तादाद ज्यादा होना है। पुराने जमाने का मामला है, उसके ऊपर डेयरी फार्मिंग नहीं चल सकती जब तक कि आप प्रॉपर बुक कीपिंग नहीं करेंगे। जब तमाम चीजों को प्रोफेशनली मैनेज करेंगे तो ये कारोबार कुछ दे सकता है। हुकूमत लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए संजीदा इकदाम उठा रही है। पंजाब में 21 के करीब लाइव स्टॉक एक्सपेरिमेंट्स स्टेशन काम कर रहे हैं। मुकामी नस्लों को मादूमी से बचाने के लिए झंग में कायम किए गए रिसर्च सेंटर की कोशिशों को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक और ज़राअत के जनरल ने भी सराहा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जाली ज़राई दवाओं और खाद के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशन में साल के पहले 6 माह के दौरान 5.5 करोड़ रुपए मालियत की जाली ज़राई अद्वियात पकड़ी गयी। तफसील आप जानते हैं अब्दुल्ला डाहा से। हुकूमत पंजाब जाली ज़राई दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के असूलों पर अमल पैरा है। महकमा ज़राअत की जाली ज़राई दवाएं और खादों के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सूबा भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। जनवरी 2020 से लेकर अब तक महकमा ज़राअत पंजाब ने सिर्फ काटन जोन में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जाली ज़राई अद्वियात कब्जा में लेकर हवाला पुलिस की है। जो हुकूमत ने ये जाली स्प्रे वाले कंपनियों को पकड़ा, ये बहुत अच्छा करा है। ठीक है ना, ये जो हमारी फसल के नुकसान हो रहे थे, हमारे पैसे का नुकसान हो रहा था। हम जो ये स्प्रे लेते हैं अद्वियात वगैरह, ये हम अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए लेते हैं, ना कि हम इन्हें बर्बाद करने के लिए। पकड़ी जाने वाली जाली ज़राई दवाओं के नमूने हासिल करके तज्जिये के लिए लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए गए हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, दुनिया भर में बुजुर्गों को नारवा सलूक से बचाने का आलमी दिन 15 जून को मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस दिन को इस संगीन मसले को उजागर करने का दिन करार दिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं लाहौर से मौसमुद्दीन की रिपोर्ट। दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ नारवा सलूक का आलमी दिन मनाने का मकसद बुजुर्गों के जिस्मानी, जज्बाती और माली इस्तेहसाल के मसले पर आलमी तवज्जो मरकूज कराना है। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर में मुकीम अफराद मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करके इस मसले को उजागर करते हैं। बुजुर्गों के साथ नारवा सलूक के हवाले से 15 जून को मनाया जाने वाला ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद के नतीजे में वजूद में आया। दुनिया भर में हर 10 में से एक बुजुर्ग इसका शिकार होते हैं। अपने बुजुर्गों की खिदमत करेंगे ना तो कल को हमारी औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। जो उम्र रसीदा लोग हैं उनका ख्याल रखें। ये नहीं कि वो जो बच्चे हैं उनके हैं, उनके लिए नहीं, पूरे माशरे के लिए है कि वो ख्याल रखें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2019 और 2030 के दरमियान दुनिया भर में 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद में 38% इजाफे की तवक्को की जा रही है और ये इजाफा तरक्की पजीर ममालिक में सबसे ज्यादा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस सिलसिले में बूढ़े अफराद को मुतासिर करने वाले मखसूस मसाइल पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बुजुर्गों के साथ नारवा सलूक के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की जा रही हैं ताकि इस संगीन मसले का हल निकाला जा सके। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, निहायत अफसोस के साथ आपको बताते चले कि माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम अमरीका में इंतकाल कर गईं। अदाकारा सबीहा खानम ने 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। उनके फनी सफर के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम 1935 में पंजाब के शहर गुजरात के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई। सबीहा खानम को भी बचपन ही से फिल्में देखने का शौक था। उस दौर के सबसे ज्यादा फ़आल हिदायतकार अनवर कमाल पाशा ने सबीहा खानम को एक फिल्म में चाइल्ड स्टार की हैसियत से मुतारिफ कराया। फिल्मों में हेरोइन के तौर पर काम करने से पहले सबीहा खानम ने लाहौर में एक स्टेज ड्रामा बुत शिकन में काम किया। फिर अनवर कमाल पाशा ही ने सबीहा खानम को अपनी फिल्म
दो आंसू में पहली बार हीरोइन कास्ट किया। अनवर कमाल पाशा ही की फिल्म गुमनाम में सबिया खानम ने अपनी जबरदस्त अदाकारी की वजह से फिल्म बीनों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। और 1960 की दहाई में सबिया खानम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ तरीन अदाकारा थीं। उनके शौहर मरहूम संतोष कुमार के साथ उनकी जोड़ी लॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में से एक थी। सबिया खानम को 1986 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया। अदाकारा सबिया खानम हम में नहीं रहीं, लेकिन अपनी अदाकारी के बायस वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में रहीं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अदाकारा सबिया खानम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्म के नाकाबिल फरामोश अहद का एक बाब खत्म हो गया। सबिया खानम ने अपनी फनकाराना सलाहियतों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी मुनफरिद पहचान बनाई। फिल्मी सनत के फरोग और फन की आबियारी में उनका किरदार निहायत अहम रहा। नाज़रीन, यूं तो इन दिनों कोरोना वबा की वजह से आलमी मईशत को भी नुकसान पहुंचा है। सयाहत का शोबा भी काफी मुतासिर हुआ है, लेकिन हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया में चंद शहर ऐसे हैं जो सयाहों और गैर मुल्की बाशिंदों के लिए रिहाइश के हवाले से सस्ते तरीन हैं। बैनुल-अक़वामी कंसल्टिंग इदारे मर्सर की जानिब से की गई तहकीक के मुताबिक ताशकंद रिहाइश के लिए दुनिया का सस्ता तरीन शहर है। दुनिया के 209 शहरों में से 200 से ज्यादा अशिया के हवाले से की जाने वाली तहकीक के मुताबिक उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद दुनिया का सस्ता तरीन शहर है, जहां खाने पीने और रोजमर्रा जरूरियात की अशिया बाकी तमाम मुल्कों से सस्ती हैं। कुछ बात करें मौसम की, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब सबसे ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहला ऑनलाइन बॉक्सिंग टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। कोरोना के बायस महदूद सरगर्मियों की वजह से मुनक्किद होने वाला ऑनलाइन टूर्नामेंट 7 रोज तक जारी रहेगा। जीतने वाले खिलाड़ियों का ऐलान बॉक्सिंग फेडरेशन के तैनात करदा रेफरीज और ऑफिशियल्स करेंगे। भारतीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता 5 खिलाड़ियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जिन खिलाड़ियों को नोटिस जारी किए उनमें चेतेश्वर पुजारा, रविंद्रा जडेजा, लोकेश राहुल, सिमरती मंधाना और दीप्ति शर्मा शामिल हैं। तमाशाइयों के बगैर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के मुकाबले जारी हैं। बार्सिलोना ने रियल मालोर्का को 4 गोल से शिकस्त दे दी। पाल्मा में खेले गए मैच में पॉइंट्स टेबल पर लीड करने वाली लियोनेल मेसी की बार्सिलोना ने रियल मालोर्का को बआसानी जेर कर दिया। मैच के दौरान फुटबॉल पर ज्यादातर बार्सिलोना के खिलाड़ी काबिज रहे। खेल के दूसरे ही मिनट में आर्टुरो विडाल ने बार्सिलोना को बढ़तरी दिलाई।
37वें मिनट में मार्टिन ब्रेथवेट ने बार्सिलोना की बढ़ती दुगनी कर दी। 79वें मिनट में जोर्डी एल्बा ने मेसी की मदद से बार्सिलोना की तरफ से तीसरा गोल किया। खेल के आखिरी लम्हात में लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना की तरफ से चौथा गोल करके न सिर्फ अपनी टीम को फतह दिलाई बल्कि 12वें मुसलसल सीजन में 20 गोल करने का संगदिल भी बुर किया। इस फतह के साथ ही बार्सिलोना की टीम 61 पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में कामयाब हो गई। दूसरी जानिब जर्मन फुटबॉल लीग के मुकाबले भी बंद दरवाजों के पीछे जारी हैं। वेर्डर ब्रेमन ने पैडरबॉर्न, बायरन म्यूनिख ने बोगोसिया म्यूनचेनग्लाडबाख और बोगोसिया डॉर्टमंड ने फॉर्टूना डुससेल्डोर्फ को हरा दिया। मुकाबला म्यूनिख लम्हात में किया। पांच मरतबा की फातेह नापोली की टीम कोपा इटालिया के फाइनल में पहुंच गई है। नापोली में मेजबान नापोली और इंटर मिलान के दरमियान खेला गया सेमीफाइनल का दूसरा मरहला एक एक गोल से बराबर रहा। मैच के दौरान ज्यादातर खेल नापोली के हाफ में खेला गया। खेल के दूसरे ही मिनट में एरिक्सन ने गोल करके इंटर मिलान को बढ़ती दिलाई। ताहम 41वें मिनट में नापोली की तरफ से डायर मर्टन्स ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। खेल के अख्ताम तक दोनों टीमें मजीद कोई गोल न कर सकी। इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान खेला गया सेमीफाइनल का पहला मरहला नापोली ने 1-0 से अपना नाम किया था। दोनों मराहल के अख्ताम पर नापोली की टीम मजमूई तौर पर एक के मुकाबले में 2 गोल से फाइनल खेलने की हकदार करार पाई। फाइनल में नापोली का मुकाबला 13 मरतबा की फातेह जुवेंटस से होगा। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को आड्रिया चैरिटी टूर्नामेंट के पहले मरहले में अपने 2 से 1 सिंगल्स मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जोकोविच ने शिकस्त से ज्यादा कोरोना वायरस के सबब इवेंट का मोंटेनेग्रो में होने वाला तीसरा मरहला मनसूख होने पर मायूसी का इजहार किया। बलगराद में खेले गए पहले मरहले के इफ्तिताही मैच में जोकोविच ने अपने हमवतन विक्टर ट्रॉस्की को हरा दिया। अपने दूसरे सिंगल्स मुकाबले में आलमी नंबर 1 को अपने हमवतन फिलिप क्राइनोविच के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोकोविच ने हारने से ज्यादा आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब इवेंट का 27 और 28 जून को होने वाला मरहला मनसूख होने पर मायूसी का इजहार किया। चैरिटी टूर्नामेंट का दूसरा मरहला 20 और 21 जून को क्रोएशिया जबकि आखिरी मरहला 3 और 4 जुलाई से बोस्निया में खेला जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इरफान महसूद ने ज्यादा पुशअप्स लगाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इरफान महसूद 31वीं मरतबा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब हो गए। आलमी रिकॉर्ड तोड़ने वाले इरफान महसूद ने 1 पाँव पर 40 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 60 पुशअप्स लगाकर अमरीकी शहरी रॉन कूपर का 53 पुशअप्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जर्मनी में पोल वॉल्ट इवेंट का इनेकाद किया गया। डुससेल्डोर्फ में मुकाबलों से बड़ी तादाद में शायकीन भी लुत्फअंदोज हुए। जर्मनी के टॉर्बन ब्लेंच ने इवेंट के इफ्तिताह का ताज अपने सर सजा लिया। ब्लेंच वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्वीडिश अमेरिकन पोल वॉल्टर आर्मांड डुप्लांटिस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए 5.5 मीटर की बुलंद छलांग लगाकर इवेंट अपने नाम कर सके। इस मौके पर शायकीन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए या तो अपनी गाड़ियों से ही लाइव या बड़ी स्क्रीन से पोल वॉल्टर की महारत से लुत्फअंदोज हुए। ये कोरोना वायरस के फैलाव के बाद जर्मनी में तमाशाइयों की मौजूदगी में होने वाला पहला स्पोर्ट्स इवेंट था। इवेंट का मकसद बच्चों के कैंसर की एसोसिएशन के लिए फंड मुहैया करना था। खेलों से इतना ही। अब आपको ये चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस और बुलेटिन से इसके साथ ही फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है। इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का
गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साई दरिया कम है, इश्क ज्यादा, मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है, प्यारे माहीगीरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर, शाम से पहले चार चराग यहीं चलते हैं, सेहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आए और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाएं लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन, मंचर झील की नीली दुनिया जिसमें बेड़ियां और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते हैं। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाए। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके, रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है, इश्क ही यारों इस वादी महरान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए।